So I have prepared nice slides for you. So we will start with meteorology basically. What is meteorology? Meteorology. Many people in the society, they always say meteorology like that. Meteorology is a science of environment. Air is blowing, the temperature will be like that. huh? Is a cloudy environment. That is meteorology. This is meteorology. Meteorology and instrumentation. Hmm? They are also this subject was also there earlier. So basically it is a type of instrumentation only, but meteorology is a science of measurement related to length and angle, means, and such other quantities that can be expressed in terms of linear and angular units. ये अपना टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है. Meteorology is a science of measurement of length and angle and such other quantities which are expressed in terms of linear and angular units. Okay. In short, layman's language, लेंथ मेजर करने वाला और एंगल मेजर करने वाला जो भी कुछ है उसमें हम मेट्रोलॉजी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे. So we'll see now dimension metrology. So lengths and angles they are covered. Okay. What happened? Now the first topic is inspection, need of inspection. So why inspection is required? So that is some points I have discussed here. Hmm? Inspection in the industry is done to compare or determine the conformance of product to specification. Uh, as per the functional requirement, designer designs your component. He gives the tolerance limit for that. Now your instruments, you have to select such an instrument that it will be able to measure that particular tolerance. You have to select first the instrument. As I told in the last lecture, the instrument which we are going to select to measure a particular quantity should have at least 10% more accuracy than the quantity to be measured. For example, आपका अगर वर्कपीस टॉलरेंस 0.01 है, तो आपको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट 0.001 वाला होना चाहिए. अगर 0.01 टॉलरेंस है और आपने वर्नियर अगर यूज किया, वर्नियर का लिस्ट काउंट कितना है बच्चों? कैन एनीबॉडी टेल मी? वर्नियर कैलिपर, एनीबॉडी? 0.01. एनी अदर आंसर? 0.01 माइक्रोमीटर का है बेटा. 0.02. 0.02 करेक्ट. मतलब 0.01 वाला जो माइक्रोमीटर है वो भी एकदम नजदीक आ गया. 0.01 का एक्यूरेसी है तो आपको ये होना चाहिए, आपको 1 माइक्रोन वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए. आइदर यू यूज स्लीप गेजेस, बट स्लीप गेजेस आर द मीन्स फॉर मेजरमेंट. इट इज नॉट डायरेक्टली मेजरिंग. सम मेजरिंग डिवाइस शुड बी देयर. तो हमने कौन सा यूज किया? हाइट गेज भी नहीं चलेगा. हाइट गेज का भी वर्नियर का ही था, वर्नियर जितना ही था 0.02. सो विच इंस्ट्रूमेंट यू विल यूज? आपने ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज किया है क्या आप तक? देखो लास्ट प्रैक्टिकल में आपको कुछ याद आ रहा है? वो प्लंजर वाला याद है क्या? प्लंजर 0.01 वाला भी एक था और 0.001 वाला भी आपको दिखाया है मैंने. दैट इज dial gauge. Okay. Dial gauge can be used and other comparators can also be used for that. Then pneumatic gauging unit can also be used. Depend upon whether it is hollow or then outside dimension. So for outside it is dial gauge, and from inside if it is there, then that pneumatic unit can be used. So it depend upon the quantity of measurement, means the accuracy of the job. It depend upon that. Means if it is 0.1, then any vernier is sufficient. 0.1 accuracy. So like that. 0.01 के लिए आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि योर इंस्ट्रूमेंट शुड बी. अगर इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी नहीं है तो वो डिफरेंस कैसा मेजर करेगा? सो दैट इज देयर. दैट्स व्हाई inspection in the industry, it is done to determine whether your
product is manufactured within the given specification or not. That is the first. Then these are some other advantage which are given here. Inspection and testing are indispensable tools for manufacturing processes. They help to control quality and reduce manufacturing cost, reduce rejection losses. क्योंकि क्या है कि अगर आपने टाइम में ही वो मेजर नहीं किया और बाद में प्रोडक्ट बन गया एंड देन इफ द असेंबली इज नॉट डन प्रॉपरली, द मेल पार्ट इज नॉट गोइंग इन द फीमेल पार्ट, देन वापस भेज दिया, फिर करेक्शन करने का लॉस है, दैट रिजेक्शन लॉस, उसका पैसा बेयर कौन करेगा, उसकी पेनल्टी, लेट हो जाएगा आपको काम करने. So all these things happen. So it is not customary that directly you do the inspection after manufacturing of part. There are stages. So the stages of inspections are there. Incoming material का ही पहले inspection करो, उसमें कुछ problem है, कुछ आप अल्ट्रासोनिक ये करो ना, उसको एक चेकिंग करो अंदर कुछ क्रैक्स वगैरह है क्या, कुछ पोरोसिटी है क्या. कभी कभी डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी करते हैं, DP test, NDT, you know. So that they do. Sometimes X-ray is also the कुछ मेजर डिफेक्ट नहीं है ना. अगर क्लस्टर पोरोसिटी है, इधर 4 टिप का, उधर 2-4 पॉइंट्स, उधर 2-4, तो चलता है, बिकॉज दैट नेवर कंबाइन. इफ इट इज लाइन पोरोसिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड पोरोसिटी चलता है. क्लस्टर पोरोसिटी और वो जो इनलाइन पोरोसिटी है, तो वो समझो ऐसा एट वेरियस प्लेसेस देयर आर स्पॉट्स. देन in the stress, what happens, if tensile stress coming, so what happens, this one pore get enlarged, another pore get enlarged, and if they join, so big hairline crack is formed. Once the crack is formed, that is a stress razor, stress concentration area. और उसमें अगर आपको टेंसाइल स्पेस आ गया तो समझो आपका कंपोनेंट गया. अगर कॉम्प्रेशन आ गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्रैक का पोर्शन एक दूसरे को क्लोज आया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं. लेकिन नीचे वाले पोर्शन में कॉम्प्रेशन आया और वो पोर्शन जहाँ पे क्रैक है वो टेंस हो गया, मतलब नीचे वाला रहेगा बेंडिंग में, तो टेंसाइल आ जाएगा. सो इट विल टियर, एंड वंस इट इज टियर इट विल शियर. एंड बाकी पार्ट इतना स्ट्रांग है, लेकिन एक इधर है और एक इधर है, अपने किस काम का, बिकॉज वी वांट द एंटायर पार्ट एट वन शॉट. सो एक छोटा सा भी क्रैक है, so it is the start of stress razor and failure. So most of the people are feared. I am slightly a teacher of design also, because I am teaching SOM. I was teaching SOM last year. Dheeraj knows his class. I was teaching SOM. So it is observed that in most of the cases the material will not fail by tensile stress. वो तो बहुत रहता है. कॉम्प्रेशन स्ट्रेस से भी फेल नहीं होता है सिविल में, हालांकि कॉम्प्रेशन स्ट्रेस पे थोड़ा ज्यादा जिक्र होता है. शियर स्ट्रेस से मोस्टली मटेरियल ब्रेक होने का चांस बहुत है. शियर मींस ओनली वन इज हियर, वन इज इन दिस डायरेक्शन, एंड सडनली इट गेट शियर. सो that's why inspection is very very essential. So incoming material inspection and testing is very important in that point of view. Then in process material inspection and testing. In process gauging नाम से आपने अगर YouTube पे टाइप किया तो आपको अलग अलग ये मिलेगा. मतलब फॉर एग्जांपल CNC मशीन पे आपका पार्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, एंड यू नो you want 36.003 and 36.005 as a male component, because the female component as per tolerance it is already manufactured somewhere else in other city Aurangabad, and you are producing some part which is going to fit in that order has come to you, and that is the tolerance is 0.01. 0.01 is the tolerance. That 33.4 and not 6, that is the tolerance given to you, given to him, and not 1 to not 3, that tolerance is given to you, means that those parts are going to fit in that. So what happens is when you are turning your component, there is one gauging unit in the front side. It is not directly touch probe. touch probe जल्दी खराब होता है. So this is a sensor type. एक रेड कलर का ऐसा सेंसर आएगा, वो एक either कैपेसिटर टाइप और इंडक्टर टाइप, इंडक्शन टाइप. So these all sensor technology and electronics that you know better than me. You have learned in that one
one subject MMM. Have you studied MMM last year? MMM? Yes, sir. So in that sensor technology, was it there in your syllabus? Sensing technology. If not there, then it will be in our this one MCT, that is mechatronics. In mechatronics, it will be there. If we in the new frame of syllabus, if it is not there, but it is various types of sensors. That PLC sensor, that part I think is in MCT. Bhosle sir is going to teach you in third year. In the third year only. Abhi, I don't know it is elective or compulsory, but it is there in that. So the sensor senses it, और वो आपको बताएगा 34.08 आया है, okay, you know, not 7 आया, not 6 आया, not 5 आया, हाँ, बंद करो आप काम बंद करो, वो whatever dimension is there, it is there. This is inline, in process material inspection. एक बार वो कम हो गया 36.01 से भी कम हो गया तो आपका मटेरियल गया, आप क्या उस पर वेल्डिंग करोगे और फिर से टाइप, वो नहीं होगा, वो एक्यूरेसी का मामला है, फिट का मामला है, इट इज नॉट जस्ट वन रॉड एंड यू आर थ्रोइंग समवेयर, इज असेंबली. फॉर एग्जांपल पिस्टन सिलेंडर, दैट रिंग, यू हैव टू मेंटेन दैट एक्यूरेसी. अगर आपका क्लियरेंस ज्यादा होगा तो वो क्या एवरेज देगा, वो आप प्रेशर दे दोगे, वो जो भी चार्ज तैयार होगा वो गैप से निकल के पीछे आएगा. आप पेट्रोल डालते रहोगे तो वो प्रेशर पिस्टन देने के बजाय वो गैप में से ही पीछे आएगा वो पूरा चार्ज. तो एक तो आपका वो पूरा सिलेंडर वो सब बिगड़ जाएगा और आपको ज्यादा पेट्रोल लगेगा, एवरेज आपका नहीं आएगा, क्योंकि वो तो फिर इन्होंने क्या किया है, पिस्टन और सिलेंडर में रिंग डाला है, तो 3 सेट्स ऑफ रिंग्स आर देयर. तो वो रिंग आप अगर बदलोगे तो आपका काम बदलेगा. अगर डायरेक्टली पिस्टन सिलेंडर पे अगर घिसता है, सिलेंडर हेड में अंदर, तो आपको पार्ट बार बार बदलना पड़ेगा और उसका कॉस्ट ज्यादा आएगा. तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये सिलेंडर जब अंदर घूमता है ना, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर, तो वो सिलेंडर ब्लॉक आपने देखा होगा, लास्ट ईयर यू वेर स्टडिंग दैट होनिंग प्रोसेस. होनिंग, डू यू नो होनिंग प्रोसेस, एनीबॉडी? होनिंग 4 ट्रायंगल फिनिश देता है, तो ये ग्राइंडिंग किया हुआ इंटरनल ग्राइंडिंग करने के बाद उसको होनिंग करते हैं. सो इट्स अ वेरी वेरी accurate process and smooth surface inside that cylinder block, and in that cylinder liner is moving, और cylinder liner किस पे फिट करते हैं, piston पे फिक्स करते हैं. So the piston moves inside and that piston ring actually is in touch with that honed process. So that's why the close contact is there, very close clearance fit is there. So that's why this in process material inspection and gauging or testing is important. Then semi-finished product inspection and testing. Semi-finished portion before finished part or before assembly, they once check is feasible or not, if something is torn or some everything is there or not, or sub assembly is perfect or not, like that they check. Then finished product inspection, सब कुछ होने के बाद एक बार उसका पूरा फंक्शनिंग वगैरह चेक करेंगे, सब मेजर जो फंक्शनिंग डायमेंशंस है उसको चेक करेंगे एक बार, और उसका ऑपरेशन भी चेक करेंगे. सो ये 4 स्टेजेस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से एक भी मिस हो गया तो उसमें अगर आपके इंस्पेक्शन में अगर वो एक आधा पार्ट मिस हो गया लेकिन वो अच्छा है तो आप बच जाओगे. अगर वो डिफेक्टिव है तो इट विल अफेक्ट द एंटायर असेंबली. दैट इज द प्रॉब्लम. बाकी कुछ नहीं. तो नीड ऑफ इंस्पेक्शन, यू जस्ट गो थ्रू वेरियस पॉइंट्स. फॉन्ट दिखता है ना बच्चों, ये determine the. हाँ सर. So these are actually. सर थोड़ा जूम कर दो ना, वरना थोड़ा जूम यानी बड़ा इसमें करो, मैक्सिमाइज. हाँ सर. ठीक है ना. ये इससे बड़ा करने का किधर है, कुछ ऐसा दिख तो नहीं रहा है. सर फुल स्क्रीन कर दो. फुल स्क्रीन तो किधर है इधर, ये एक मिनट. सर टॉप राइट में स्लाइड शो. इसमें तो वो विंडो आ रहा है जिधर मैं मेरा खुद का वो दिख ही नहीं रहा है मुझे. एक मिनट बच्चों. हाँ नीचे एक थोड़ा सा ये है, देखो ये. ओके, अभी आया क्या?
हेलो, हाँ सर, हाँ अभी अभी हाँ अभी इतना ठीक है ना? क्या और खड़ा करूँ? हाँ हाँ इन सर, ठीक है सर, ठीक है। कर सकता हूँ अभी भी बड़ा, क्योंकि अपने को है। ए बाप रे, एक वो पेज से गया वो मेरा। हाँ, नीड ऑफ इंस्पेक्शन। सर, ये ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आगे पीछे कर सकता है, ऐसा कुछ वादा नहीं। जस्ट दिस फैसिलिटी इज ऑलवेज देयर। वो विंडो में चला गया वो उधर। मेरा खुद का चेहरा दिखता है उसके नीचे वो। नीड फॉर इंस्पेक्शन। सो दीज आर सम पॉइंट्स। अगर क्वेश्चंस, ये जो छोटे छोटे स्लाइड्स मैंने जो बनाए ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बनाए। सी, एज अ टीचर आई हैव टू टेक केयर ऑफ योर नोट्स एंड अदर थिंग। सो दैट्स व्हेनेवर आई डिस्कस सम कंसेप्ट, सो दैट्स ऑल। उसमें एक्चुअली आपको पूरा ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद ऑल दिस थिंग्स व्हिच आई हैव रिटन इज सपोर्टिंग टू दैट मीन उसका सब these are the that's why when this inspection is done in all these four stages, these things are necessary. Means this is the need of the inspection. It comes in that only, those four main stages. In that is of supportive way. To convert physical parameters to test it, that is already covered. For evaluating the performance, that is already covered. To establish the validity, to ensure that the part conforms to, yes, to meet हाँ, एक कंसेप्ट है बच्चों, इंटरचेंजेबिलिटी एंड सिलेक्टिव असेंबली. As have you studied? Anybody has studied in diploma? What is interchangeability and what is selective assembly? Can anybody tell me? Diploma fellows, they speak. So Open. that any part from the any lot should match to the other part of the other part of the lot. So that is what it is called. Interchangeability. It is interchangeability. And what is selective assembly? नहीं मालूम नहीं तो ठीक है ना, मैं बताऊंगा. मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ कि बच्चों को मालूम है क्या, डिप्लोमा में सिखाया गया है क्या, ऐसा मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ. हाँ? ऐसा बताया नहीं ना कोई सिलेक्टिव असेंबली. हाँ, शायद नहीं बताया, तो मैं बताता हूँ. देखो, वो उसने बराबर बोला. इस बच्चे ने, कौन है अभी मेरे को मालूम नहीं, स्क्रीन पे कोई नहीं आया. एक बच्चे ने बराबर अभी बताया कि दो असेंबली है. एक पार्ट दूसरे पार्ट में जा रहा है, लेकिन बिकॉज आज का दौर मास प्रोडक्शन का है. ए पार्ट विच इज मेल पार्ट विच इज मैन्युफैक्चर्ड एट सम प्लेस इन विक्रोली, another part is produced in Pune or Aurangabad, and then these thousands of parts, when they produce, they come to at one place where the assembly is done. That part, after joining, it becomes sub assembly and it goes to some assembly. Huh? So in manufacturing, automobile, etc., it is a frequent thing. Now interchangeability means अगर ये ए पार्ट का कोई भी एक पार्ट हमने रैंडम लिया और बी पार्ट जो दूसरा, जो फीमेल पार्ट जिसमें वो बैठने वाला है, उसका कोई भी पार्ट हमने ले लिया, तो वो एक दूसरे के साथ ऐसा मैच होना चाहिए कि जो इंटेंडेड टॉलरेंस है, एग्जांपल 0.01, वो बराबर उसमें मैच आना चाहिए. मीन्स इट शुड कंफर्म टू द स्पेसिफिकेशन. कोई भी पार्ट अगर आपने लिया तो 0.01 टॉलरेंस आना चाहिए. आप बोलेंगे ये कैसा पॉसिबल है कि कुछ तो एरर इसमें होगा, कुछ तो एरर उसमें होगा, तो वो उसमें भी फर्क आ सकता है. द आंसर इज यस, आ सकता है. क्योंकि वो जो मेल पार्ट बनाने वाला है और फीमेल पार्ट बनाने वाला है, उनको भी टॉलरेंस दी है. तो उस टॉलरेंस का समझो समझो ऐसा हो गया कि ए पार्ट वाला आदमी, उसने अपने टॉलरेंस का लोअर डायमेंशन को एक आधा पार्ट बनाया. फॉर एग्जांपल 34.01, 31.01 और 30.4.04 ए पार्ट को दिया है. और फीमेल पार्ट को 34.02 और 34.06 दिया है. तो अगर ए पार्ट वालों का हमने जो मेल पार्ट है उसका 34.01 वाला पार्ट लिया और उसका फीमेल पार्ट वाले का हायर साइड का मतलब 34.05 वाला अगर ले लिया, तो उस वो जब हम एक दूसरे में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.03 0.04 ऐसा क्लियरेंस आ जाएगा. उसमें अपना
जो इंटेंडेड डिफरेंस है क्लियरेंस वो बिगड़ जाएगा. देयर विल बी ह्यूज गैप. इट विल नॉट बी अ क्लोज क्लियरेंस फिट, इट विल बी लूज क्लियरेंस फिट और आपका परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा. आप बोलेंगे फिर क्या करना. इन नो मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड कैन एग्जैक्टली कैन मेक द पार्ट एग्जैक्टली. उसको थोड़ा टॉलरेंस तो चाहिए ही. ये टॉलरेंस में हम सीखने वाले हैं. इवन ऐसा कहते हैं लोग, इवन गॉड कैन नॉट मेक टू एग्जैक्टली अलाइक थिंग्स. मीन्स नेचर और गॉड वॉट एवर यू से, they cannot make the two things exactly same. For example, a twin is there. You can say Ram and Sham, both are same. They exactly same. Huh? You cannot identify. राम को श्याम बोलते हैं, श्याम को राम बोलते हैं. But their mother is such an instrument that she can identify. अरे राम को राम ही बोलेगी वो, श्याम नहीं बोलेंगे. She knows. How she knows we don't know, but she is that accurate. There is some difference. That's why she is able to identify. राम राम है, श्याम श्याम है. Other layman, पड़ोसी भी जमलिंग का देते हैं. अरे राम, हाँ. मैं ऐसा होता है ना हमारे लाइफ में बहुत जगह. आज भी कुछ कोई लोगों को हम लोग आज भी पहचान नहीं पाते. तो because we are not that accurate instrument to adjust the difference between. एक minute difference रहेगा, but that instrument will exactly find out the difference between that two. So it is said that even nature, even God cannot do that. Who are you to do that? That's why some amount of tolerance must be needed for manufacturer. आदमी है भाई आखिर. तो लेकिन ये गड़बड़ होती है कि हमारा जो इंटेंडेड टॉलरेंस है तो उसका क्या करेगा. तो ये इंटरचेंजेबिलिटी का कंसेप्ट टेम्पररीली फेल हो जाता है कि कोई भी एट रैंडम यहाँ से ले लो और कोई भी यहाँ से ले लो. लेकिन ये करेगा तो दो एक्सट्रीमिटीज आ गया कि मेल पार्ट का एकदम छोटा पार्ट और फीमेल पार्ट का एकदम बड़ा पार्ट. ये अगर आया तो क्या करेंगे. तो इसमें सिलेक्टिव असेंबली कंसेप्ट है. सिलेक्टिव असेंबली में क्या करते हैं कि इसके टॉलरेंस जोन है तो 0.01 के जो डिफरेंस में 3 ग्रुप्स तैयार करते हैं. यानी 34.01, 34.02, 34.03 वाला, ऐसा 3 ग्रुप अलग करके रखते हैं. और ये साइड में आपका इसके भी 3 ग्रुप तैयार करके 02, 03, 04. और इसका 01 वाला कोई भी पार्ट वो 02 को देन दे अप्लाई इंटरचेंजेबिलिटी. यू अंडरस्टैंड. मींस लेकिन उसमें फिर उतनी मेहनत जाती है. तो ये लोग बोलेंगे यार ये क्या है कंसेप्ट यार, सिलेक्टिव असेंबली. फिर उसको एक मेजर करो, न्यूमेटिक गेज से मेजर करो, ये करो. ये तो 100% इंस्पेक्शन हो गया ना. इसमें तो पैसा नहीं बच रहा है अपना. लेकिन वो पैसा बाद में बच रहा है, मतलब रिजेक्शन लेवल का. लेकिन इंस्पेक्शन तो बढ़ गया. अब ये क्या है यार. तो उसके इसी के लिए तो बाद में वो अभी जो मैं बता रहा था इन प्रोसेस गेजिंग एक्सेट्रा वो सब काम आता है. इन प्रोसेस गेजिंग में ऑटोमेटिकली आपको मालूम पड़ेगा कि वो कहाँ तक आया और बाद में हम रुकते हैं कि भाई नहीं इतना ही चाहिए. सो एक्यूरेसी ऑफ प्रोसेस इज इंक्रीज. अगर उतनी एक्यूरेसी आपके पास नहीं है तो ऑल दीज आर द आइडिया, सिलेक्टिव असेंबली एंड इंटरचेंजेबिलिटी. अदरवाइज आपको वो पार्ट्स फेंक देने पड़ेंगे. तो वो रिजेक्शन लेवल से तो अच्छा है you can accept that part by these concepts, interchangeability and the selective assembly. So these are the concepts. This is actually coming under the chapter of tolerance actually. लेकिन इधर अभी वो जिक्र हुआ सामने इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया. और क्या क्या है to establish the validity of design and for finding new data and this ensure that the part confirm. Yes, वही बार रिपीट होता है. to meet interviews to maintain customer relations. of course ये सब होने के बाद तो वो तो होना है कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिलेशन. TQM का कंसेप्ट है ये. तो फाइंड शॉर्टकमिंग्स इन मैन्युफैक्चर. या अगर कोई बार इंस्पेक्शन होते हुए भी कोई अगर उतना एक्यूरेसी नहीं दे रहा है तो मशीन मैन्युफैक्चरिंग का शॉर्टकमिंग, मशीन क्या कंडीशन है उसका, क्या फॉल्टी है वो उसमें अब हम मालूम पड़ता है. टूल बराबर नहीं है, टूल शार्पनिंग गया है. देन डेप्थ ऑफ कट शायद ज़्यादा लगा है, चैटर मार्क्स आ रहा है तो फिनिश ज़्यादा नहीं आ रहा है. इन प्रोसेस गेजिंग में वो मालूम पड़ता है. हेल्प्स टू परचेज गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल. डेफिनेटली वो फर्स्ट स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है ना, एट द रॉ मटेरियल स्टेज, उधर ये काम आ जाता है. तो वी विल गो नेक्स्ट नाउ. The objective of metrology. One more better slide I got from one authorized book.
वो बुक का नाम भी मैंने लिखा था कहीं तो है, ये स्लाइड मैंने नेट से ली बाद में, तो ये आपके लिए दे दिया। तो आपको ये इसमें उन्होंने ऐसा किया है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेट्रोलॉजी रिलेटेड टू प्रोडक्ट, प्रोसेसेस, इंस्ट्रूमेंट, like that they have given. So this is one very good slide you can use for your uh, exam. That's why I have collected it for you. बच्चों को जो जो जरूरी है और जो